A very good morning, class 6th. So today we are going to start with the new chapter, that is the section 2 of unit 6, that is a face in the dark. So we have completed up till why birds commit suicide, and we have completed the question answers, book exercise. We have completed up to page number 108 of your reader. And today we are going to start with this lesson, a face in the dark. So open your books at this page. All of you open, and I hope that you people have completed your book up till here and you have completed your question answers also, because I have sent each and every vocabulary as well as the question answers of each and every lesson. So now it is your duty to complete your work and revise also. So now open your book at page number 109. The name of the lesson is A Face in the Dark, and today is Monday, that is 28th of December. So this is unit 6, section 2. Now, so our this unit is the unit of mystery, right? So listen to me carefully. A face in the dark. A major sangster, a teacher at the Anglo-Indian public school in Simla, was returning to school late one evening after a game of billiards at the Simla club. Now the story is about a teacher. His name is Major Sangster. His name is Major Sangster. He is a teacher at an Anglo-Indian public school in Simla. There is one school in Simla, and the name of the school is Anglo-Indian, and he is a teacher there. What is the name of the teacher? Major Sangster. He was returning to school late one evening. He was coming back to school one evening. So after a game of billiards, he used to go and play billiards at the Simla club. So maybe he used to go after the school goes off. So he used to go to the proper Simla and to the Simla club, and there he used to play the billiards game. It's a game played on a big table and with a long stick and the balls. So you have to hit the balls with that stick. So one evening, so that teacher was, name of the teacher is Major Sangster, and he is a teacher at Anglo-Indian Public School in Simla. He was coming back to school after playing billiards at the Simla club. So he had been there at the Simla club. He was playing game billiards. You have heard about that game. It's played on a long table with they hit the ball with a stick. There's a long stick and they have to hit the ball and put it in that hole. So he was coming back to school one late evening. The bazaar with its cinemas and restaurants was about 2 miles from the school. So the school was about 2 miles away from cinemas and the restaurants. So Major Sangster, a bachelor, had been teaching for several years. So he had been teaching there in that school for several years, and he usually strolled into town at evening. So after school, when the school goes off, so he used to go to the bazaar and have a stroll there, or sometimes he goes to the Simla club, and after a game of billiards he just came on strolling back to the school. So usually he used to stroll in the town at the evening. तो शाम को वो town में घूमने निकल जाते थे. Strolling means ऐसे घूमना. Returning to school after dark, and जब शाम काफ़ी dark हो जाती थी, रात होने वाली होती थी, then he used to come back to school. So when he would take a shortcut through a pine forest. So he had been teaching there for several years, so every way and path of that Shimla was very much familiar to him. So he was not afraid of anything. So whenever he used to come back, it was quite dark. जब काफ़ी dark हो जाती थी evening, he used to come back from the town to school back. So
ही यूज़ टू टेक द शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। तो वो शॉर्टकट ले लेते थे, फॉरेस्ट में से निकल के आते थे जहाँ पे पाइन ट्रीज़ होते थे। मोस्टली पाइन ट्रीज़ जो होते हैं हिल स्टेशंस में होते हैं। सो ही यूज़ टू टेक द शॉर्टकट थ्रू द पाइन फॉरेस्ट। So 20 years of living in a boarding school and knowing without really ever getting to know thousands of polite but distant Indian schoolboys had made Major rather lonely, despondent. So he had been teaching there for 20 years. 20 years वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे। 20 years हो गए थे and it was a boarding school. What is boarding school? Do you know that about that? Boarding school is बच्चे like there was a hostel also for the students. So means students they used to after schooling they used to go to the hostel also, means they don't go back to the their parents' place, means all the students are from out of city. So when the students are from out of city, so there is a boarding facility in the schools also, hostel जिसे हम बोलते हैं hostel facility. So it was a boarding school and Mr. Sangster has been teaching in that school for last 20 years. 20 साल हो गए थे उनको वहाँ पढ़ाते हुए, and knowing without really ever getting to know thousands of polite but distant school Indian boys. So it was a boys' school and for 20 years he has been teaching there, and पढ़ाते पढ़ाते 20 years is not a less period of time, it's quite much. एक आपने उम्र निकाल दी पढ़ाते हुए, 20 years बहुत होते हैं. So कितने ही स्टूडेंट्स उनके सामने से निकल के गए, कितने ही स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया. So he knew so many thousands of Indian boys. वो बहुत सारे बच्चों को जानते थे जो उनसे पढ़ के गए थे. Thousands of polite but distant Indian school boys, means पढ़े, polite थे, अच्छे बच्चे थे, पढ़े, and they just passed out the school and they went. So he used to know many thousands of students, Indian boys, had Major rather lonely and despondent. तो इस वजह से जो मेजर थे वो बहुत लोनली और डिस्पॉन्डेंट मीन्स डिजेक्टेड सा फील करते थे बहुत, मीन्स ही वॉज ऑल अलोन, राइट. सो बिकॉज स्टूडेंट्स कम एंड गो, सो ही न्यू मैनी स्टूडेंट्स, बट वो फिर भी बहुत लोनली थे और बहुत ही डिजेक्टेड थे, बहुत लोनली थे. When there was a strong wind, the pine trees made sad, eerie noises that kept most people to the main road. So obviously आप फॉरेस्ट में से रात को निकल के आएंगे तो इट्स क्वाइट इयरी. हर कोई तो नहीं निकल के आ सकता क्योंकि फॉरेस्ट में से तो वैसे ही बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के डर रहता है. बट ऐसा था कि जब स्ट्रॉन्ग विंड, जब हवा तेज़ चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तो पाइन ट्रीज़ में से भी जब पत्ते हिलते हैं तो बहुत ही इयरी सी फीलिंग आती है, जैसे कोई घोस्ट वाली फीलिंग हो. जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं जो घोस्ट वाला हो तो उसमें एक पीछे से बहुत टेरिफाइड सी साउंड्स नहीं आती हैं, तो ऐसी ही पाइन ट्रीज़ में से भी आती हैं. जब स्ट्रॉन्ग सी विंड उड़ती है वू करके ऐसी वाली साउंड आती है. तो these pine trees made sad eerie noises. तो बहुत अजीब सी, डरावनी सी उन पेड़ों में से हवा चलती थी तो वो डरावनी सी आवाज़ें निकलती हैं. तो इसलिए जो लोग थे मोस्टली इफ दे आर गोइंग ऑन दैट पाथ, सो दे विल नेवर टेक दैट शॉर्टकट फ्रॉम द फॉरेस्ट, दे विल ऑलवेज गो फ्रॉम द मेन रोड. बट मेजर सैंगस्टर he was quite familiar with all the paths, so he was not afraid of anything. So he used to take the shortcut from the forest only. तो ये फॉरेस्ट से ही होके जाते थे और अंधेरा हो चुका होता था. It was quite dark. The hill people believe that each tree has its own resident spirit. तो जो हिल पीपल थे, मीन्स जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे हिली एरिया के, सो दे यूज टू बिलीव कि हर पेड़ की एक अपनी एक स्पिरिट है. स्पिरिट मीन्स हिंदी में से आत्मा बोलते हैं, राइट, घोस्ट. सो दे ऑल द पीपल दे बिलीव दैट ईच ट्री हैज़ इट्स ओन स्पिरिट. हर पेड़ की एक अपनी स्पिरिट है. And only waiting to take possession of an unwary passerby. So they were afraid of passing through that forest because they thought that the one who will pass through that forest, so each tree has its own one ghost, so they will just take possession of, means जो भी वहाँ से निकलेगा तो वो जो spirit है हमारे अंदर आ जाएगी. So all the hilly people they were afraid of going through that shortcut. तो वो शॉर्टकट नहीं लेते थे कभी भी फॉरेस्ट से, वो मेन रोड से जाते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि हर पाइन ट्री की एक अपनी स्पिरिट है और वो जैसे ही किसी पासर पाए को वहाँ से देखेगी तो वो जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर आ जाएगी.
So, but Major Sangster was not a nervous, but so so all the people, they used to believe that we should not take the shortcut from the forest, and they thought that we should go from the main road only, because they were afraid of the spirits. They think that each pine tree has its own spirit, and they will just possess our bodies whenever they will see any passerby going through the forest. So, but Major Sangster was not a nervous or imaginative man. But Major Sangster, he did not believe in all these stories, and he was not a nervous. वो इन चीज़ों से डरते नहीं थे और ना ही imaginative थे. So he believed in science and not in a science fiction. और वो he believed in science कि all these things are rumors. These things does not happen. He didn't believe in ghosts and all these stories of the spirits. So he always took that shortcut from the forest from town to the school. That school was 2 miles away from that main town of Shimla. So on this particular night, he was carrying a torch. So that day also, in the dark evening was quite dark, and he was going back to school, and he was carrying a torch in his hand. Its pale green moved fitfully along the narrow forest path. तो टॉर्च की जो येलो लाइट होती है, एंड ही वॉज कैरिंग दैट, एंड ही वॉज यूजिंग दैट लाइट टू प्रोसीड फर्दर. ऐसे लाइट देख डालता था और आगे चलता जा रहा था. तो द बैटरीज वर रनिंग डाउन, और जो उसकी लाइट थी ना बैटरी की, उसके सेल वीक हो रहे थे, और वो जो लाइट थी वो कम होती जा रही थी. मूव्ड फिटफुली अलॉन्ग द नैरो फॉरेस्ट पाथ. तो वो जो छोटा सा रास्ता होता है शॉर्टकट उसमें से, जंगल में से, तो वो बहुत ही उसमें से वो टॉर्च को ऐसे ऐसे करके निकल रहे थे. When its flickering light fell on the figure of a boy. तो थोड़ी देर में जैसे वो आगे जा रहे थे, तो उनकी जो लाइट थी टॉर्च की, वो एक बॉय वहाँ पे उनको ऐसा नजर आया कि एक बॉय बैठा है, उसके ऊपर वो लाइट गिरी टॉर्च की. On the figure of a boy who was sitting by himself on a outcrop of rock. So जैसे ही वो आगे जा रहे थे, तो टॉर्च आगे रहती है ऐसे रास्ता दिखाने के लिए, मीन्स लाइट पड़ रही थी, तो ऐसे ऐसे वो चलते जा रहे थे. तो बाई चांस उनकी जो टॉर्च की लाइट थी, एक बॉय उनको, मतलब जो टॉर्च की लाइट थी वो एक बॉय के ऊपर पड़ी. मीन्स उन्होंने देखा कि एक बॉय है, वो आउटक्रॉप ऑफ रॉक, मीन्स जैसे ना कई बार पत्थर थोड़े से बाहर निकल आते हैं अर्थ से, तो वो हिस्सा थोड़ा सा रॉक का बाहर निकला हुआ था, अर्थ का अपर क्रस्ट. तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बॉय बैठा हुआ है, और उसका मुंह ऐसे नीचे है. ही कैनॉट सी हिज फेस. उनका मुंह, उस लड़के का ऐसे मुंह नीचे था, और जो उनकी टॉर्च की लाइट थी वो उस बॉय की फिगर पे पड़ी. मेजर सैंगस्टर स्टॉप्ड इन सम सरप्राइज. तो जैसे ही वो टॉर्च बॉय पे पड़ी, तो मेजर जो थे सैंगस्टर, ही स्टॉप देयर एंड ही स्टॉप्ड इन सम सरप्राइज. उन्होंने देखा कि ये इतनी मतलब डार्क उसमें नाइट में फॉरेस्ट में क्यों बैठा है ये. So boys were not supposed to be out of school after 6 p.m. because he knew that he has been teaching there in that school for 20 years. So he knew that what are the timings. So no boy was allowed to come back, go out of the hostel after 6 p.m. So how come this boy is sitting so late in the forest? So he was surprised. एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 9, और उनको आते आते 9 बज रहे थे. तो उन्होंने सोचा कि 6 बजे के बाद तो किसी भी बॉय को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है. सो हाउ दिस बॉय सिटिंग देयर इन द फॉरेस्ट लोनली इन द डार्क नाइट. सो व्हाट आर यू डूइंग आउट हियर. तो सैंगस्टर वहाँ रुके, उन्होंने ऐसे टॉर्च रखी हुई थी, तो वो उस बॉय से पूछने लगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. आज द मेजर सीवियरली कमिंग नियर इन ऑर्डर टू ट्राई एंड रिकग्नाइज द मिसक्रिएंट. सो ही जस्ट केम नियरर, और उसके पास आगे बॉय के टॉर्च की लाइट डाली और उसको सीरियसली पूछने लगे कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और कोशिश कर रहे थे, वॉज ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज कि ये कौन है. मिसक्रिएंट मीन्स ट्रबल मेकर. उनको लगे कि कोई बच्चा जानबूझ के प्रैंक मीन्स ट्रबल मेकर है, ऐसा कोई बच्चा, शैतान बच्चा है जो इस वक्त यहाँ बैठा है और मैंने इसे आज पकड़ लिया. सो ही जस्ट वेंट नियर टू दैट बॉय मेजर, और उससे पूछने लगे कि व्हाट आर यू डूइंग हियर एट दिस टाइम. बट इवन एज ही अप्रोच द बॉय, द मेजर कुड टेल दैट समथिंग वाज रॉन्ग.
तो जैसे ही मेजर उसके बिल्कुल पास गए तो मेजर को लगा कि कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। द बॉय अपीयर टू बी क्राइंग, और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बॉय रो रहा है, उनको रोने की आवाज़ आई बॉय से। ही हैड हिज हेड इन हिज हैंड्स, और उसका जो सिर था उसने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ था बच्चे ने। दैट बॉय ही वॉज होल्डिंग हिज हेड लाइक दिस, ही वॉज सिटिंग लाइक दिस, राइट, एंड हिज बॉडी शूक, और उसकी जो बॉडी थी वो हिल रही थी। तो जैसे ही वो उसके पास गए उनको फील हुआ कि ये बच्चा जो है, दिस बॉय इज क्राइंग एंड ही वॉज होल्डिंग हिज हेड इन हिज हैंड एंड हिज बॉडी वॉज शूकिंग। सो बट इट वॉज स्ट्रेंज, पर उनको कुछ स्ट्रेंज सा लगा, कुछ अजीब सा लगा। साउंडलेस वीपिंग मीन्स रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी, बट उन्हें लगा कि बच्चा रो रहा है, विच मेड मेजर सैंगस्टर फील डिस्टिंक्टली अनईजी। तो उनको थोड़ा सा अनईजी लगा कि मुझे आवाज़ आ रही है रोने की, बट मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा है। मीन्स जिसे कहते हैं ना साउंडलेस वीपिंग, मीन्स उनको फील हो रहा था कि ये बॉय रो रहा है, बट उन्हें आवाज़ नहीं आ रही थी रोने की। देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट एवरीथिंग, दैट बॉय एंड दैट साउंडलेस वीपिंग। ही वॉज फीलिंग अ बिट अनईजी। मेजर सैंगस्टर जब उसके पास गए, उन्होंने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग हियर। सो ही फेल्ट दैट बॉय वॉज क्राइंग, बट ही कुड नॉट हियर द साउंड ऑफ हिज weeping, and the major sangster was feeling a bit uneasy. Well, what's wrong? मेजर सैंगस्टर ने दोबारा उससे पूछा, his anger giving way to concern. तो जब उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने दोबारा पूछा कि हो सकता है कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो उनका जो गुस्सा था वो अब थोड़ा सा कंसर्न में बदल गया कि शायद कोई सच में कोई प्रॉब्लम हो। तो उन्होंने दोबारा पूछा, वेल व्हाट्स रॉन्ग, मुझे बताओ क्या बात है। What are you crying for? तुम यहाँ पे क्यों रो रहे हो? The boy could not answer or look up. तो बॉय ने ना तो कोई आंसर किया ना ही ऊपर देखा। His body was still ragged, और he could see, Major could see that his body was still ragged means ऐसे लग रहा था कि बड़ी डिस्ट्रेस्ड है, बड़ी स्ट्रेस्ड, टॉर्चर किया हो ना जैसे किसी ने, उसकी बॉडी ऐसे थी बॉय की। साइलेंट सॉबिंग, और वो साइलेंट सॉबिंग होता रोना, बट जिसकी आवाज़ ना आए, साइलेंटली, एंड दैट बॉडी वॉज साइलेंटली सॉबिंग। उनको ऐसा लग रहा था कि वो बॉय रो रहा है, बहुत डिस्ट्रेस में है, बहुत टॉर्चर हो रहा है उस पर, और बट उनको आवाज़ नहीं आ रही थी रोने की। कम टेल मी द ट्रबल, लुक अप। तो मेजर सैंगस्टर ने फिर एक बार उस बॉय से पूछा कि तुम ऊपर देखो, जस्ट टेल मी, व्हाई आर यू क्राइंग, टेल मी द प्रॉब्लम। द बॉय लुक्ड अप। तो बॉय ने ऐसे मुंह ऊपर किया। ही टुक हिज हैंड्स अवे फ्रॉम हिज फेस, ऊपर किया तो उसने हाथ भी हटा लिए अपने फेस से, टुक अवे हिज हैंड्स एंड लुक्ड अप एट हिज टीचर, तो उसने अपने टीचर को देखा। द लाइट फ्रॉम द मेजर्स टॉर्च फेल फुल ऑन द बॉयज फेस, तो जो टॉर्च की जो लाइट थी तो मेजर ने उसके चेहरे पे डाली ऐसे, क्योंकि पहले तो पूरी बॉडी पे थी, तो जैसे उस बच्चे ने मुंह ऊपर किया तो मेजर ने टॉर्च की जो लाइट है पूरे उसके फेस पे डाल दी। He had no eyes, no ears, no nose, no mouth. So, as the light fell on that boy's face, तो मेजर ने देखा कि उसके चेहरा है ना जो, उस पर ना आईज हैं, ना नोज है, ना ईयर्स है, ना माउथ है, कुछ नहीं है, वो प्लेन है बिल्कुल, जैसे आपका सिर होता है ना ऐसे ही पूरा प्लेन। His face, if you could call it, that was a round smooth head. तो मीन्स उसके चेहरे पे ये फीचर्स नहीं थे, ना आईज, ना नोज, ना माउथ, ना ईयर्स, नथिंग। इट वॉज जस्ट प्लेन, जैसे आपका सिर है वैसे प्लेन यहाँ मुँह पूरा, एंड कवर्ड बाय अ स्कूल कैप। मीन्स अगर आप बोलें कि उसका जो क्या था फेस, एक स्मूथ हेड था, पूरा पूरा सिर प्लेन फेस, उस पर कुछ भी नहीं था, नो फीचर्स, एंड इट वॉज कवर्ड बाय द स्कूल कैप, और उस बॉय ने स्कूल की कैप डाली थी। द टॉर्च फेल फ्रॉम द मेजर सैंगस्टर्स हैंड। तो जैसे ही मेजर ने देखा कि उसके चेहरे पे कुछ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल सपाट है, मीन्स सिर जैसा है तो मेजर के हाथ में जो टॉर्च थी वो नीचे गिर गई, एंड ही टर्न एंड स्क्रैम्बल्ड डाउन द पाथ, और वो इतना डर गए कि वो मुड़े और भागना शुरू कर दिया तेज़ी से। स्क्रैम्बल्ड मीन्स क्लाइंबिंग अप, क्राउलिंग मीन्स वो गिरते पड़पड़ाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि ये क्या है, मैंने क्या देख लिया। रनिंग ब्लाइंडली टुवर्ड्स द स्कूल गेट, और वो इतनी तेज़ी से
अंधाधुन, ब्लाइंडली मीन्स बिना देखे वो स्कूल के गेट की तरफ भागे. ही वॉज स्टिल रनिंग व्हेन ही सॉ लैंटर्न स्विंगिंग इन द मिडल ऑफ द पाथ. अब वो बहुत तेज़ी से भागे स्कूल की तरफ, जब तक कि उन्होंने देखा कि एक लैंटर्न मीन्स एक लैम्प, वो जो लैम्प नहीं होता है, उनको एक रास्ते में वो नज़र आई. Major had never been so pleased to see the night watchman, and that lantern was in the hand of the night watchman. तो अब वो तो रोज़ आते थे उस रास्ते से, बट दैट डे ही वॉज सो टेरिफाइड दैट कि जब उन्होंने देखा कि वॉचमैन दिख गया उनको लैंटर्न के साथ, तो ही वॉज सो प्लीज्ड, बहुत खुशी हुई उनको वो नाइट वॉचमैन को देख के कि मैंने किसी को देख लिया. ही स्टम्बल्ड अप टू द मैन, और वो बिल्कुल उसके ऊपर भागते भागते गिर गए वॉचमैन के ऊपर, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह अंधाधुंध भाग रहे थे डर के मारे. गैस्पिंग फॉर ब्रेथ एंड स्पीकिंग इनकोहेरेंटली, एंड ही जस्ट स्टम्बल्ड ऑन द वॉचमैन. गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, बहुत तेज़ी से सांस ले रहे थे, और स्पीकिंग अनकोहेरेंटली मीन्स जो वो बोल रहे थे ना वो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे. जो उन्होंने अभी पीछे एक्सपीरियंस किया, वो बॉय जिसका कोई फेस पे फीचर ही नहीं था, उसके बाद वो इतना ज़्यादा घबरा गए कि वो अंधाधुंध स्कूल की तरफ भागे. एंड ही जस्ट व्हेन ही सॉ दैट नाइट वॉचमैन विद द लैम्प, दैट लैंटर्न, ही फेल्ट सो प्लीज एंड ही जस्ट ऑलमोस्ट फेल ऑन दैट वॉचमैन टू सी हिम. वो इतने खुश हुए उनको देख के कि उनकी सांस में सांस आई. एंड वट एवर ही वॉज सेइंग, ही वॉज स्पीकिंग समथिंग मेजर, बट वो कुछ समझ नहीं आ रहा था. मम्बल करते हैं ना जब आपको कुछ समझ नहीं आता डर के मारे, जब आप कुछ बोल नहीं पाते, तो ही वॉज डूइंग जस्ट लाइक दैट. सो दिस वॉज द स्टोरी, एंड वी हैव एंडेड विद दिस, अ फेस इन द डार्क. सो मेजर सैंगस्टर हैड अ वेरी eerie experience, as he was teaching there for 20 years, but he had never seen such a boy without no eyes and no lips, no nose. So he was very much terrified. So with this we have finished with the story, and tomorrow we will discuss the question answers and the exercise.